Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine. Welcome to online classes of Division Public School and College, Sahiwal. I am Muhammad Madani, Subject Specialist Mathematics at Division Public School and College, Sahiwal. Let's start our math lecture number 11 of class 7th. Chapter number 1 and the name of chapter is sets. Contents are properties involving union of sets, properties involving intersection of sets. Exercise number 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. If A, B are any two sets, then A union B is equal to B union A is called the commutative property of union of two sets. For example, if set A consisting of elements 1, 2, 3 and set B consisting of elements 2, 4, 6, then verify that A union B is equal to B union A. Solution. A union B. Dear students, इसमें सबसे पहले हम सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे, डेट इज 1, 2, 3, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे जो क्या है 2, 4, 6. Dear students, as you already know that union of two sets means a set consisting of all the elements which are in set A or set B or in both. So we have A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 6. इसमें 2 जो हैं दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इसे हम 1 टाइम लिखेंगे. सिमिलरली B यूनियन A इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे. So we have B union A is equal to 1, 2, 3, 4, 6. Dear students, आप देख सकते हैं कि A यूनियन B और B यूनियन A दोनों का आंसर सेम है. So we can say that A union B is equal to B union A. Hence proved. Properties involving intersection of sets. Commutative property. If A, B are any two sets, then A intersection B is equal to B intersection A is called the commutative property of intersection of two sets. For example, if set A consisting of elements A, B, C, D and set B consisting of elements A, C, E, G, then verify that A intersection B is equal to B intersection A. Solution. A intersection B is equal to A, B, C, D intersection A, C, E, G. Dear students, as you already know that intersection of two sets means a set consisting of all the common elements of set A and B. So here we have the common elements in set A and B. A, C. आप देख सकते हैं कि A और C ऐसे एलिमेंट हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं. सिमिलरली B इंटरसेक्शन A, इसमें सबसे पहले हम सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे. सो आप देख सकते हैं कि सेट B और सेट A में कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, A एंड C. सो आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों का आंसर क्या है, सेम है. So we can say that A intersection B is equal to B intersection A. Hence proved. Exercise number 1.4. Question number 1 is, if set A consisting of elements A, E, I, O, U, set B consisting of elements A, B, C and set C consisting of elements A, C, E, G, then verify that first part A intersection B is equal to B intersection A. Solution. A intersection B is equal to A, E, I, O, U intersection A, B, C. Dear students,
आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। सिर्फ ए जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन है। सो वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। सिर्फ ए वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन है। सो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सेम है। सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सॉल्यूशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू। इस पे सेट ए जो है वो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है, सो इसे हम वन टाइम लिखेंगे। सिमिलरली बी यूनियन ए इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। सो बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर दोनों का आंसर सेम है। सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पार्ट 3 इज बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। सॉल्यूशन बी यूनियन सी, इसमें सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए और सी, जबकि हम बी और सी का यूनियन फाइंड कर रहे हैं। सो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी ई जी। सिमिलरली सी यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी ई जी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि बी यूनियन सी और सी यूनियन बी दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हेंस प्रूव दैट बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। पार्ट 4 is B intersection C is equal to C intersection B. Solution B intersection C is equal to, dear students, इसमें सबसे पहले हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट C के एलिमेंट्स लिखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि सेट B और सेट C में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, A एंड C। सिमिलरली C इंटरसेक्शन B में सबसे पहले हम सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेट सी और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए एंड सी। सो अब आप देख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, दैट इज ए सी। हेंस प्रूव दैट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। Part 5 is A intersection C is equal to C intersection A. Solution A intersection C is equal to, इसमें सबसे पहले हम सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट C के एलिमेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सेट A और सेट C में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, A एंड E. सो वी हैव A E. सिमिलरली C इंटरसेक्शन A, इसमें सबसे पहले आप सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि सेट सी और सेट ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए एंड ई। हेंस प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन दोनों का आंसर क्या है, हमारे पास सेम है। पार्ट 6 इज
A union C is equal to C union A. Solution A union C is equal to, इसमें सबसे पहले हम सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट C के एलिमेंट्स लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास A यूनियन C का आंसर क्या आ जाएगा, A C E G I O U। सिमिलरली C यूनियन A इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम सेट C के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे। सो हमारे पास C यूनियन A का आंसर क्या होगा, A C E G I O U। इसमें आप देख सकते हैं कि A यूनियन C और C यूनियन A दोनों का आंसर सेम है। हेंस प्रूव दैट A यूनियन C इज इक्वल टू C यूनियन A। सो बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। असाइनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है जिसको आप इस लेक्चर की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यूर असाइनमेंट इज, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 7 9 11 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 5 9 13 and set C is equal to 2 6 9 11, then verify that first part is A intersection B is equal to B intersection A, second part is A union B is equal to B union A, third part is B union C is equal to C union B, fourth part is B intersection C is equal to C intersection B, fifth part is A intersection C is equal to C intersection A, sixth part is A union C is equal to C union A. Wish you best of luck. Thank you.